بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ فیضان ریسپی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج ہفتہ 26 اپریل ہے اور ہم بات کر رہے ہیں روس اور یوکرین جنگ کی۔ پاپ فرانسس کی آخری رسومات سے آغاز کریں گے۔ آج پاپ فرانسس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ ویٹیکن سٹی کے اندر لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں لوگ ان آخری رسومات کے اندر شریک ہوئے اور لاکھوں لوگوں کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ لیڈرز بھی یہاں پر موجود تھے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، اٹلی کی جارجیا میلونی سمیت پولینڈ کے سربراہ اور دیگر یورپین لیڈرز یہاں پر موجود تھے۔ کچھ عرب کنٹریز کے لیڈرز نے بھی یہاں پر شرکت کی۔ لبنان کے صدر بھی یہاں پر نظر آئے، ان آخری رسومات کے اندر موجود تھے۔ جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی انٹری ہوئی تو یہاں پر ظاہر ہے کہ بڑی بڑی سکرینز لگی ہوئی تھیں ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو ان آخری رسومات کے اندر شریک تھے۔ تو جب یوکرین کے صدر انٹر ہوئے آخری رسومات میں شرکت کے لیے تو کلیپنگ ہوئی، بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں ان لاکھوں لوگوں کی جانب سے یوکرین کے صدر کو دیکھنے کے بعد۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہاں پر انٹری ہوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاپ فرانسس کی آخری رسومات کے اندر شرکت کے لیے پہنچے تھے، اور یہاں پر جب ڈونلڈ ٹرمپ پر کیمرہ جو ہے وہ زوم ان گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو کھڑے رہے، کیونکہ جس طرح کے بیانات، جس طرح کے اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے اتحادیوں کو لے کر، یورپین کنٹریز کو لے کر، یا جو بھی ورلڈ لیڈرز یہاں پر موجود تھے، تو ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ تناؤ بہت زیادہ ہے امریکہ کا۔ اس کے باوجود جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیاں ہیں انہوں نے ہاتھ ملانے سے پہل کی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ملنے لگے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کی، اور اس سے بھی بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے بھی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کردار نظر آ رہا تھا، درمیان میں آئے، اور دونوں کو، یوکرین کے صدر کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، فرانس کے صدر نے کرسیوں پر بٹھا دیا۔ اس طرح سے ظاہر ہے کہ کوئی سیپریٹ میٹنگ روم یا اس طرح کے انتظامات تو نہیں کیے گئے تھے، یہ آخری رسومات تھیں جس کے سائیڈ لائنز پر یوں کہہ لیں کہ سادہ سی دو کرسیاں لگا دی گئیں، اور وہاں پر یوکرین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیٹھ کر کیا گفتگو کی وہ آپ کو بتانے سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا گفتگو کی تھی۔ اوول آفس کے اندر کس طرح کے مناظر تھے، کس طرح کا جھگڑا تھا، کس طرح سے لڑائی ہو گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کی، اور اس لڑائی کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی یوکرین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ اچھا، اس لڑائی کے بھی علاوہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر جب ہماری روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کے صدر کو لے کر پھر سے بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے۔ تب غصہ ہو گئے تھے جب یوکرین کے صدر نے امریکہ کا 7 نکاتی پیس فارمولہ مسترد کر دیا، بلکہ منہ پر دے مارا کہ مجھے یہ پیس فارمولہ منظور نہیں ہے جس میں مجھے کرائمیا کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور اپنے 4 علاقے بھی مجھے رشیا کو دینے پڑیں گے، تو یہ پیس فارمولہ میں نے کچھ نہیں لینا اس پیس فارمولے سے۔ اور یوکرین کے صدر نے اس پیس فارمولے کو کیمرے کے اوپر کھڑے ہو کر مسترد کر دیا تھا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے اسی طرح کی باتیں کی جس طرح کی باتیں اس نے اوول آفس کے اندر یوکرین کے صدر کے سامنے بیٹھ کر کی تھی۔ تو کیمرے کے اوپر بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی طرح کی باتیں کی، ٹروتھ سوشل کے اوپر کچھ لمبے چوڑے پیغامات لکھے اور یوکرین کے صدر کو جھاڑ پلائی۔ پھر جب ناروے کے سربراہ یہاں پر موجود تھے وائٹ ہاؤس کے اندر تو صحافیوں کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جی کرائمیا آپ رشیا کو اٹھا کر دینا چاہتے ہیں، یوکرین کے صدر سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کا صدر کرائمیا کو رشیا کا حصہ تسلیم کر لے، تو کیسے کر لے، اس میں کیا لاجک ہے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا صحافی کے سوال پر، یہ سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ But do you still agree that Ukraine have to give some territory away to win peace? Well, it depends what territory. They've been fighting. They've lost a lot of territory. And we'll do the best we can. Working with Ukraine, we'll do the best we can. But they lost a lot of territory. When you say Crimea, that was handed over during a president named Barack Hussein Obama. That had nothing to do with me, Crimea. That was 11 years ago with Obama. And they made a decision. There wasn't a bullet fire. There was no fighting. There was no anything. They just handed it over. Now they say, well, can you get it back? I think that's going to be a very difficult thing to do. That was given by
Barack Obama when he was president, not by Donald Trump. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि क्राइमिया रशिया को मैंने नहीं दिया था। बगैर लड़े जब क्राइमिया 2014 में रशिया से यूक्रेन हार गया था तो उस वक्त ओबामा जो है वो अमेरिका का सदर था, और अब इतने साल गुजर जाने के बाद क्राइमिया तो वापस लेकर नहीं मैं दे सकता यूक्रेन को, तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही ये जो रूस और यूक्रेन जंग है इसको बंद किया जा सकता है। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तो रशिया से क्या ले रहे हैं आप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। What concessions, Mr. President, and to your national security team, what concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, stopping taking the whole country. Pretty big concession. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनसे सहाफ़ी ने अच्छा सवाल किया कि जी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तो सारा कुछ यूक्रेन नहीं देना है या फिर रशिया भी कोई कंसेशंस वगैरह दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरे यूक्रेन को रशिया फतह नहीं कर रहा, तो क्या आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी कंसेशन है कि मैंने रशिया को रोक दिया, बातचीत की टेबल पर बिठा दिया। यानी कि इन अदर वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा यूक्रेन को या यूक्रेन के सदर को कि तुम्हारे पास कोई कार्ड्स नहीं है कि तुम प्ले करना चाहते हो, अगर मैं दरमियान में से निकल गया तो रशिया पूरे यूक्रेन को फतह कर लेगा। और इस मीटिंग के अंदर भी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोडक्टिव करार दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि यही बातें की होंगी जो ओवल ऑफिस के अंदर जब नॉर्वे के सरबराह आए हुए थे तो जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, तो वही बातें यहाँ पर भी पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात के साइडलाइंस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर से यही बातें की होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको प्रोडक्टिव मीटिंग करार दिया, लेकिन इस मीटिंग की जो तफसीलात हैं वो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने नहीं आई, आने वाले चंद घंटों में जाहिर है कि तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। इस मीटिंग के अलावा एक और मीटिंग हुई मॉस्को के अंदर, जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ता हैं स्टीव विटकॉफ, ये इन्होंने मुलाकात की, जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे मुलाकात की है, और ये तीसरी चौथी मुलाकात है स्टीव विटकॉफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से, और इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोडक्टिव करार दिया कि रूस के सदर से स्टीव विटकॉफ की मुलाकात प्रोडक्टिव थी और रशिया जंगबंदी के लिए तैयार है। और यूक्रेन भी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही दावा किया कि यूक्रेन और रशिया दोनों जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस तरह के दावे आपको मालूम है कि जब से इसने ओवल ऑफिस संभाला तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के दावे जो हैं दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा ये सेम स्क्रिप्ट रिपीट करता है कि जी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई, जंग बंद हो रही है, लेकिन जंग है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। मैदान जंग की सूरत हाल में आपको बता दूं कि रशिया की जानिब से एक बहुत बड़ी फतह का ऐलान आज किया गया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग के दौरान इस फतह का भी ऐलान किया। कुर्स्क रीजन को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन से रशिया ने वापस ले लिया है और कुर्स्क से यूक्रेन के फौजियों को भगा दिया गया है, बल्कि सुमे रीजन को अब रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सुमे रीजन के अंदर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। सुमे कुर्स्क को बॉर्डर करता है, सुमे यूक्रेन का रीजन है और कुर्स्क आपको मालूम है कि रशिया का रीजन है जिसको कई महीनों यूक्रेन ने कंट्रोल करके रखा, लेकिन फिर रशिया की फौजों ने और नॉर्थ कोरिया की फौजों ने यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे भगाने में किरदार अदा किया है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग के दौरान पहली मर्तबा ये एडमिट किया कि नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया के अंदर मौजूद थे और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ना सिर्फ लड़ रहे थे बल्कि पुतिन ने तारीफ की है नॉर्थ कोरिया के फौजियों की और ये कहा कि नॉर्थ कोरिया के फौजियों का किरदार है कि उन्होंने रशिया के कुर्स्क रीजन को यूक्रेन से वापस लेने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि हमारी फौजें इसी तरह से आगे की जानिब बढ़ती रहेंगी जब तक अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के जो गोल्स हैं उनको रशिया अचीव नहीं कर लेता। और दूसरी साइड पर रूस के सदर ने स्टीव विटकॉफ से जो मुलाकात की तो वहां पर अपनी विलिंगनेस जाहिर की कि रशिया बातचीत की टेबल पर बैठकर मामलात को हल करने के लिए तैयार है। अमेरिका की सालसी में अगर यूक्रेन का सदर जो है वो बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। यहाँ पर विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात में ये भी मामलात तय हुए हैं और पॉजिटिव ये मामलात जो हैं वो पॉजिटिव सिमत में गए हैं विटकॉफ के मुताबिक कि रशिया और यूक्रेन ये एक ही टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं। अमेरिका की सालसी में इनको बिठाया जा सकता है इख्तलाफात के बावजूद। अगर यूक्रेन के सदर अमेरिका के साथ नुकाती
जो पीस प्लान अमेरिका की जानिब से पेश किया गया है, अगर उस पर यूक्रेन के सदर एग्रीमेंट जाहिर कर देते हैं, वो 7 नुकाती पीस प्लान में एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर चुका हूं, मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी दे दूंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, तो यूक्रेन के सदर वो क्राइमिया को रशिया का हिस्सा तस्लीम करने वाला नुक्ता या फिर अपने 4 इलाकों पर समझौता यूक्रेन के सदर करते हुए नजर नहीं आ रहे। और जहां तक ताल्लुक है रशिया का, जिसने अभी तक ओपनली ये बात तो नहीं की, लेकिन ये जो पीस प्लान है अमेरिका का, इसमें यूरोपियन पीस कीपर्स यानी कि यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीज वाला जो नुक्ता है, उस पर जाहिर है कि रशिया को एतराज होगा। और यही तो रशिया का एतराज है कि रशिया को अपने बॉर्डर पर यूरोप के या फिर नेटो के जो ट्रूप्स हैं, वो अपने बॉर्डर के ऊपर आपको मालूम है कि हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और पुतिन का एक कंसर्न दुरुस्त भी है, जिसको कीव के मेयर ने सेकंड किया। कीव के मेयर ने एक बयान जारी करते हुए यूक्रेन के सदर को मशवरा दिया कि जनाब, फिलहाल ये जो 4 इलाके हैं या फिर जो क्राइमिया है, उसको आप फिलहाल रशिया का हिस्सा तस्लीम कर लें। फिलहाल से क्या मुराद है आपको मालूम है कि फिर इनको यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री भी किया है कि ठीक है आप यूक्रेन की हिफाजत करें, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करें, तो इन यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को फिर से तैयारियां करवाई जाएंगी और कई सालों के बाद फिर से यूक्रेन जो है वो ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए रूस के सदर को ये नुक्ता कि यूरोपियन पीस कीपर्स रशिया के बॉर्डर के ऊपर तैनात रहें, रूस के सदर को इस नुक्ते पर एतराज होगा। एक और खबर मैं आपको बता दूं कि रशिया के एक सीनियर जनरल को टारगेट किया गया, मॉस्को से चंद किलोमीटर के फासले पर। ये फिर से यूक्रेन का नाम सामने आया है। रशिया की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। कार बम धमाका था जिसमें रशिया के जो जनरल हैं उनको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। यानी कि यूक्रेन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पीस का तो कोई मूड नजर नहीं आ रहा। और यूरोप की जिस तरह की हरकतें हैं, अब ये नॉर्वे के सरबराह जो यहाँ पर आए हुए थे, मैं आपको बता दूं कि इनके साथ येन स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हुआ करते थे, इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। और नॉर्वे के सरबराह पहले तो सलूट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको सलूट करते हैं कि आप यूक्रेन जंग बंद करवा रहे हैं। और दूसरी साइड पर येन स्टोल्टनबर्ग ने किस तरह की बात की व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Just briefly on Ukraine, since it was mentioned, we had a very good and extensive discussion about Ukraine, the path forward to peace. And as the Prime Minister said, we commend the US for pushing forward to try to find a negotiated solution. At the same time, we need to continue to support Ukraine, and therefore I'm proud that Norway has actually tripled the military support to Ukraine. And this year we will allocate close to $8 billion to Ukraine. That will strengthen them and also their hand on the negotiating table. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के फॉर्मर चीफ येन स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर पहले पीस के किरदार को सराहा और फिर ये कहा कि हमने यूक्रेन के लिए अपनी मदद इमदाद को 3 गुना कर दिया है। और यूक्रेन के लिए ये जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, येन स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये जरूरी हैं। और इन्होंने एक तरफ से ये पीस एफर्ट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और दूसरे हाथ से ये यूक्रेन को अभी से इन्होंने तैयारियां करवानी भी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये जो नुक्ता है, इस पर रशिया को इतराज होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करता है कि रशिया और यूक्रेन के जो भी कंसर्न्स हैं इस 7 नुकाती पीस फॉर्मूले को लेकर, इन कंसर्न्स को कैसे दूर किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।